Before starting this course on career counseling, it is extremely important to understand why you should take your career choice seriously. In this video, we will help you understand the importance of making the right career choice for yourself. So, why is your career choice so important? It is important because it determines a lot of things in your life, including number 1, quality of life. Your career choice plays a huge role in deciding where you live, how flexible your life is, and the kinds of things you are able to do in your free time. Number 2, identity. Ask any elder person about their career and they will tell you about it as a part of their identity. They'll say something like, I am a journalist, instead of, I report news. Notice how everybody asks you, what do you want to be when you grow up? And not, what do you want to do when you grow up? This shows that your career choice shapes your identity. Number 3, impact. Every human life touches thousands of other lives in so many different ways. If you select any 60-year-old person who is about to retire, take a time machine, find him as an infant, throw that infant into trash, and then come back to the present day, you'll find that a countless number of things around you have changed. So whatever career you choose, the world will be affected by it. Anything that determines your quality of life, your identity, and the impact that you make should be taken very seriously. And that includes your career choice also. So we hope that this short video could help you understand the importance of making the right career choice. Having done that, we will now move forward to start our career counseling course. We are pretty excited and we hope you are too. So, let's begin. See you. नमस्कार दोस्तों, सबको स्वागत है। वेलकम टू डे 68 ऑफ प्रोबोनोज लाइव पॉडकास्ट। और हैप्पी न्यूज़ है एक तो, फर्स्टली मेरा लैपटॉप काम कर रहा है, सो आई डोंट नो, गुड फॉर यू गाइस, गुड फॉर मी, गुड फॉर एवरीबॉडी। सो अगेन वेलकम टू एवरीवन, सारे ऑडियंस मेंबर्स को। एंड ऑफ कोर्स आज बहुत ही स्पेशल है, एक्सट्रीमली स्पेशल पॉडकास्ट टुडे। और एज यू कैन सी बहुत ही सारे गेस्ट्स हैं। तो इंट्रोड्यूस करने के लिए फर्स्टली ब्रेस योरसेल्फ। फर्स्टली आई वांट टू वेलकम आदित्य एंड मिस्टर सेन। And आज का stream Vinayak is running, shout out to Vinayak as well. तो पहले मैं introduce कर देता हूँ। Firstly, we have Akshay and Harish from Udyam Learning Foundation, and we have Sadhna Vishwakarma, Shweta, Divya Rai, Monica, Sujata. They are सारे ही ITI के students हैं from both ITI Gurgaon and ITI Faridabad. और साधना from Copa, Shweta from Sewing Technology, Divya from Spa Therapy, Monica and Sujata from Copa as well. Copa जो कि Computer Operations and Personal Assistance. तो सबसे पहले मैं सबको स्वागत करना चाहता हूँ। Everybody welcome हमारे पॉडकास्ट में। सारे स्टूडेंट्स को, हरीश, अक्षय, एवरीबडी, और आदित्य और मिस्टर सेन तो हमेशा रहते ही है। आई होप सभी सेफ रह रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है, जो आपने पोस्टर देख ही लिया होगा, कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एक बडिंग एंटरप्रेन्योर जो कि फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एन एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के दिमाग में चलता क्या है। और अभी उन सक्सेसफुल बनने से पहले, एक प्रोडक्ट बनाने से पहले, जब वो आइडिया सोचने के फेज में रहते हैं और वो बनना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर, लेकिन किसी की मदद नहीं है, कोई सहारा नहीं है, और वो सोचते रहते हैं कि क्या करूं, कैसे करूं, किसी की मदद नहीं है, और खोया खोया से रहते हैं। तो उस एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, बडिंग एंटरप्रेन्योर का हम माइंड में आज थोड़ा एक जर्नी लगाएंगे और जानेंगे कि उनका सोच कैसे है। और दोस्तों, जैसे कि हम बताते रहते हैं, प्रोबोनो इन एसोसिएशन विद उद्यम लर्निंग फाउंडेशन एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम रन कर रहा है ITI गुड़गांव और ITI फरीदाबाद में। और सबसे पहले मैं चाहूंगा हरीश या अक्षय में से
कोई पहले ये प्रोग्राम के बारे में कुछ बता दे ताकि आगे का कॉन्वर्जेशन के लिए हमें पता रहे कि एग्जैक्टली चलता क्या है. सो हरीश, अक्षय, हरीश, व्हाट यू? नमस्कार साथियों, मेरा नाम हरीश है और मैं उद्यम लर्निंग फाउंडेशन से हूँ। उम्मीद है आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे, आप और आपके परिवार वाले। ये जो पायलट प्रोग्राम जिसकी अभी समत ने बात की, ये हम हरियाणा ITI डिपार्टमेंट के साथ हम जो ऑलरेडी एक काम कर रहे हैं, तो उसमें हमने सोचा कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप, स्वरोजगार, ये एक ऐसा विकल्प हो सकता है जो लोग नौकरी के साथ साथ ये सोचें कि क्या मैं ये भी मेरा एक करियर हो सकता है। तो उसके चलते हम लोग सरकार के साथ जब हमने ये प्रपोजल डाला तो उन्होंने कहा कि अपन एक बार कुछ ITIs में इस चीज को एक पायलट करके देखते हैं कि अभी तक क्या है कि बहुत सारा डर, बहुत सारा भय और बहुत सारे मिथक हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में प्रचलन में है, जिससे कि हर कोई ये हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि क्या वो खुद का व्यवसाय या स्वरोजगार का तरीका अपनाए। इसीलिए क्या हम उन सबको तोड़कर इन बच्चों के साथ एक छोटे लेवल पे ऐसा काम कर लें जिससे कि बच्चों में वो साहस, वो धैर्य आ जाए, जिसकी वजह से वो एंटरप्रेन्योरशिप को या स्वरोजगार को अपने करियर का एक विकल्प मानने को तैयार हों। क्योंकि जैसा अभी अपन देखते हैं कि जो नौकरियां, चाहे वो सरकारी है, चाहे वो प्राइवेट है, उनके हालात अभी बहुत ज्यादा सामान्य नहीं है। तो एक तो वो तरीका है, दूसरा काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। तो क्या हम अपने पैरों पे खड़े होके खुद का कुछ ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा शुरू कर सकते हैं जो हम ना केवल खुद के लिए एक रोजगार का उपाय बने, बल्कि बाकी काफी सारे लोगों के लिए ये एक उम्मीद की किरण बने। तो ये एक हम हरियाणा सरकार के साथ ITIs में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। और मैं बोलना चाहूँगा कि अभी इस प्रोजेक्ट के 6 हफ्ते हो गए हैं and we are honored and happy to work with Udyam and firstly mainly the students of ITI जो कि आप अभी उनसे मिलेंगे। तो पहले मैं सभी को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, और यूजुअली तो हमेशा एक बड़ा लिस्ट बना रहता है या फिर बड़ा एसे बना रहता है मेरे जो गेस्ट को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, लेकिन आज के लिए थोड़ी सी चेंज के लिए मैं चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और सबसे पहले अपने हमारे ऑडियंस को पता चले कि आप कौन हैं और कहाँ से हैं। तो पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ श्वेता से। मैं गुड़गांव से हूँ एंड माय नेम इज श्वेता और मैं गुरुग्राम ITI में सिविंग टेक्नोलॉजी में स्टडी कर रही हूँ और अभी मैं प्रो बोनो और उद्यम लर्निंग के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ और मेरा बिजनेस है आर्ट एंड क्राफ्ट और पेंटिंग्स और ड्राइंग्स। बहुत बढ़िया। दिव्या। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्या राय है। मैं ITI ओमेन गुड़गांव से हूँ। मेरा ट्रेड स्पा थेरेपी है। मैं पार्लर खोलना चाहती हूँ और एंटरप्रेन्योर्स से सीखने को मिल रहा है, जिसकी सहायता से मैं आगे सीख रही हूँ और खोलने के लिए मतलब खोल सकती हूँ। बहुत बढ़िया। मोनिका। मेरा नाम मोनिका है। मैं ट्रेड कोपा से हूँ, ITI फ्रॉम फरीदाबाद। मैं अपना आइडिया उद्यम लर्निंग फाउंडेशन के साथ डिस्कस करके आज उनके साथ वर्क कर रही हूँ उस आइडिया पे, और मैंने कुछ YouTube चैनल पर अपना चैनल भी बनाया है उनके मदद से, जिसका नाम है फैशन क्रिएशन। तो यही मेरा इंट्रोडक्शन है। और साथ में सुजाता। मेरा नाम सुजाता है और मैं ट्रेड कोपा से हूँ, वुमेन ITI फरीदाबाद सेक्टर 18। और मैं और मेरी फ्रेंड मोनिका ने दोनों ने साथ मिलकर एक आइडिया को बिजनेस के रूप में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक YouTube पे चैनल भी बनाया है जिसपे हमने वीडियो बना के डाली हुई है। और दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मोनिका और सुजाता के द्वारा जो YouTube चैनल खुला है, ऑफ कोर्स सारे बिजनेस के जो Instagram या YouTube लिंक्स है वो आपको कमेंट सेक्शन में आदित्य जी फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन मोनिका और सुजाता का जो YouTube चैनल है, मैं बताना चाहूंगा कि 2 वीडियो बनाने के बाद ही, आई थिंक दोनों वीडियो कुछ 4 या 5 मिनट के वीडियोस थे, और 2 वीडियो के बनाने के बाद ही इनके ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं। तो हम बहुत ही खुश है कि इनका बिजनेस
2 वीडियो के बाद ही शुरू हो गया है, मुझे तो अभी 1 साल लग रहा है, अभी भी धीरे धीरे शुरुआत हो रही है मेरी। तो आई थिंक मैं बहुत ही हैप्पी हूँ उन दोनों के लिए। और लास्टली साधना, अगर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने आप को। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं हूँ साधना विश्वकर्मा और मैं हूँ फरीदाबाद से, एंड मैं फरीदाबाद ITI से कोपा कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ। कोपा की फुल फॉर्म है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। और मैंने उद्यम फाउंडेशन की फाउंडर टीम के साथ मिलकर अपना बिजनेस तो नहीं, खैर मुझे टीचिंग करना पसंद है, तो मैंने उसी से ही रिलेटेड अपनी वीडियोस जो हैं यूट्यूब पे अपलोड की हुई हैं, और मेरे चैनल का नाम है स्टडी फॉर यू। थैंक यू। और दोस्तों मैं एक बोलना चाहता हूँ, और ऑब्वियसली ये कोई मैं कॉपीराइट क्लेम करने या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराने का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम जो एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, उसी से सीख के साधना ने उसी को थोड़ा मोल्ड करके, ताकि इंटरप्रेट करके अपने ही लैंग्वेज में वीडियोस बनाते हैं। और थोड़ा मैं बोल लो, थोड़े वीडियोस तो हमारे ग्राफिक्स से भी बेटर है, तो वैसे वीडियोस बनाते हैं। तो सारे लिंक्स और सारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स हैंडल्स आपको यूट्यूब ये फेसबुक के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आदित्य, अगर आप वो कर सकते हो, और लेबल कर दीजिए कि किस स्टूडेंट का कौन सा बिजनेस है। तो दोस्तों, अगर आपको सपोर्ट करना है, आई थिंक बहुत सारे ITI के स्टूडेंट भी देख रहे हैं, और आर यूजुअल व्यूअर्स एज वेल, अनीता जी, पुष्कर दास, शिखा जी, एवरीवन, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स, आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म दैट वी कैन प्रोवाइड एट दिस मोमेंट इन टाइम, जो आप फ्यूचर के एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना चाहोगे। तो उसी के साथ आई थिंक पहले हरीश जी और अक्षय, अगर आप भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ऑफ कोर्स हरीश जी ने प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन अपना खुद का इंट्रोडक्शन उतने सही से दिया नहीं। तो फर्स्टली हरीश जी। हाँ, मेरा नाम हरीश है और मैं उद्यम लर्निंग फाउंडेशन से करीब पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। इससे पहले मेरा पूरा ही करीब 15 साल का सोशल सेक्टर का ये एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ पे मैंने लास्ट माइल तक अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर पे काम किया है। मैंने प्रथम एजुकेशन के साथ काम किया है, और बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ और अभी बैंगलोर बेस्ड हूँ, पर ऐसे ही राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड के बीच में काफी ट्रेवल करता है। और ये हमारा हरियाणा में तीसरा प्रोग्राम है जो हम लोग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अक्षय, अगर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने आप को। हेलो सबको, थैंक यू हमको इस पे लाने के लिए। मेरा नाम अक्षय कुमारिया है और मैं भी उद्यम लर्निंग फाउंडेशन के साथ पिछले 2 सालों से जुड़ा हुआ हूँ लगभग। और उससे पहले मैं कॉर्पोरेट में फाइनेंस और मार्केटिंग में काम कर चुका हूँ थोड़ा 2.5 साल के लिए। और उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई करी है, आई थिंक एक और सबसे बात कर चुके हैं। तो ये पायलट हम कर रहे हैं, जैसे हरीश ने आपको बताया, क्योंकि उद्यम में हम एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की बात करते हैं, और उसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो है कि हम एंटरप्रेन्योर कैसे बनाएं, एंटरप्रेन्योर में देखें, यंग एंटरप्रेन्योर्स में देखें कि वो एक्शंस कैसे आ रहे हैं माइंडसेट से। तो अभी इंट्रोडक्शन के लिए मैं यही बोलूंगा। अभी बस मैं घर पहुंचा हूँ, बैंगलोर में था और अभी मैं वापस लुधियाना आया हूँ चंडीगढ़ से, तो इसलिए अभी मैं थोड़ा सेटल हो रहा हूँ। ग्रेट। और मैं विश करना चाहता हूँ अक्षय जी को, बहुत टाइम के बाद ये अपने फैमिली को मिल रहे हैं। सो वी आर हैप्पी कि वो सेफली घर पहुंच गए, और होप सेफ रहेंगे ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। ग्रेट। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आज बताया है, जो टॉपिक है फॉर टुडेस टॉपिक वुड बी अ जर्नी इनटू द माइंड ऑफ अ बडिंग एंटरप्रेन्योर, जो कि मोनिका है, साधना है, सुजाता, श्वेता, दिव्या, ये सारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है। तो इनके दिमाग में सोच क्या चलती है, तो ये क्या डर होंगे या फिर उनके क्या भावनाएं हैं एक बिजनेस शुरू करने से पहले, अपना खुद का फ्रेंचाइजी या एंटरप्राइज खोलने के लिए, तो आज वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक तो ये है, आई थिंक ये बहुत ही जनरल टॉपिक होगा। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है कि नहीं इस डेट में, आज की डेट में क्या एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है? क्या एक छोटी सी खुद का कंपनी शुरू करना जरूरत है कि नहीं? मैं शुरू करना चाहता हूँ मिस्टर सेन से। आई थिंक ही कैन गिव अ गुड कॉन्टेक्स्ट आने वाले डिस्कशन में। सो मिस्टर सेन, 2 minutes, 2.5 minutes। हाँ दोस्तों, वन मोर हेड्स अप,
क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट हैं आज, तो मैं स्ट्रिक्टली विलन बनूंगा आज, सो हेट मत करना, अगर हेट भी करते हो आई डोंट केयर, लेकिन आज बहुत टाइम पे स्टिक करेंगे और मैं टाइम लगा के बोलूंगा और बजर भी चला रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मिस्टर सेन 2.5 मिनट्स। नमस्कार नमस्कार एवरीवन। सो समझ ने तो डरा दिया, तो ठीक है, बहुत जल्दी से मैं खत्म कर लेता हूँ। अभी एंटरप्रेन्योरशिप, इज इट नेसेसरी या इज इट नॉट नेसेसरी टुडे? तो एंटरप्रेन्योरशिप माने ये होता है कि मैं थोड़ा बहुत रिस्क ले सकता हूँ, ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत रिस्क ले सकता हूँ, थोड़ा लॉस हो जाएगा, लेकिन आखिर में मैं एस्टैब्लिश हो जाऊँ और एक अच्छा से लाइवलीहुड या लाइफ जी पाऊँ। सो दैट आई बिलीव इज एंटरप्रेन्योरशिप। सो शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिस्क लेना होता है, सो वो 12 महीना 18 महीना जो भी हो। तो मैं एक यंग एंटरप्रेन्योर, वो सलून चला रहा है, तो उनके साथ मैं बातचीत किया था बहुत सारे। तो उसको 12 महीना लगा, पहले 12 महीना में उसको बहुत पैसा निकलते गया, लेकिन 12 महीने के बाद वो पूरा प्रॉफिट में आ गए। इस टाइम में 2 चीज का बहुत जरूरत होता है। एक तो एक मेंटर ढूंढना होता है जो मेंटर कर सकते हैं। तो समत, आई वांट टू आस्क यू समथिंग, दूसरा बार सेकंड टाइम चांस मिले या नहीं मिले? दैट डिपेंड्स, आगे आने वाले कॉन्वर्सेशन कैसा रहेगा। So since I have that mic, I'm going to talk. तो एक चीज तो बहुत जरूरी है कि जब एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी, एक मेंटर चाहिए। और दूसरा चीज जो है, मैं 5 स्किल के बारे में बात करूंगा जो मेरा ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे का महल में सक्सीड करने के लिए। So I'll start with the 5 skills. एक तो है सीखने का रेट, लर्निंग रेट, कितना जल्दी हम लोग सीख सकते हैं, नया चीज कितना जल्दी सीख सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। और लर्निंग ये नहीं है कि सर्टिफिकेट मिला या डिप्लोमा मिला, नहीं। लर्निंग ये जो है कि एक्सपीरियंस से सीखना है, दूसरे को एक्सपीरियंस से सीखना है। ये कितना जल्दी, जितना जल्दी हम सीख पाएंगे इतना जल्दी हम आगे निकल जाएंगे। दूसरा है सेकंड स्किल जो है, दैट इज ऑन इकोसिस्टम। आदित्य, आई डोंट नो व्हाट इकोसिस्टम इन हिंदी इज, सो यू कैन हेल्प मी आउट। एक एनवायरनमेंट, एक सीखने का एनवायरनमेंट या कोई सही एनवायरनमेंट बेसिकली। No, this is nothing about learning. ये जो इकोसिस्टम है, ये है कस्टमर है, पेरेंट है, सप्लायर है, आपके साथ जो जो काम कर रहे हैं, बैंक्स हो गया, गवर्नमेंट हो गया, आपका जो जिस परिस्थिति में काम कर रहे हैं, इसमें जितना 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 आदमी का कंट्रीब्यूशन है या हिस्सा है, उस सबको लेके कैसा चलना है। तो ये इकोसिस्टम के हम लोग एक कोऑर्डिनेशन करना है, इकोसिस्टम को चलाना है, इकोसिस्टम के अंदर में जीना है, आगे निकलना है। तीसरा जो है, अभी अब हम लोग बहुत डिजिटल वर्ल्ड में हैं, इंटरनेट बहुत आ गया, घर घर में इंटरनेट आ गया, और ये कोविड के लिए इंटरनेट तो अभी सबको रूल ही कर रहा है, सबसे ऊपर में है। तो थर्ड जो स्किल है, ये दोनों इंटरनेट या डिजिटल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड, ये दोनों को लेके एक बैलेंस बना के आगे कैसे निकल सकता हूं। अभी वो जमाना चला गया कि मैं सिर्फ दुकान बना लूं या फिजिकल प्रेजेंस बना लूं, उसमें चलेगा। अभी डिजिटल में तो अब यूट्यूब चैनल जो बनाया है, तो यूट्यूब चैनल इज अ चैनल टू एडवर्टाइज। हाउ कैन यू मोनेटाइज द यूट्यूब चैनल? वो यूट्यूब चैनल से पैसा कैसे निकल सकता है? Mr. Sen, 2.5 minutes, just a heads up quickly, please. Okay, that's the third. The fourth is imagination. हम कितना इमेजिन कर सकते हैं, कितना ड्रीम कर सकते हैं, कितना ख्वाब देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिफ्थ वन इज रेजिलियंस। रेजिलियंस मीन्स कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे आगे का माहौल को करेक्ट करने के लिए, तैयारी करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। बजट बनाना है, प्लानिंग करना है। बजट प्लानिंग हम लोग सोचते हैं ये तो बड़ा बड़ा कंपनी का काम है, नहीं,
छोटे में भी हम लोग बजट बना सकते हैं, छोटे में भी हम लोग कैश का ये प्लानिंग बना सकते हैं, कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, कहाँ से कैश आएगा, किसके लिए कैश जा रहा है, किसका कैश जाने का कम कर सकते हैं। ये 5 स्किल बहुत जरूरी है आगे निकलने के लिए। मैं मेंटर के बारे में बाद में बताऊंगा, समझ में टाइम देगा तो। तो दोस्तों मैं जल्दी से ये समराइज कर देता हूँ। रेट ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने की तेजी, इकोसिस्टम जो कि आप किस परिस्थिति में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो या फिर कुछ करना चाहते हो। तीसरा, डिजिटल और फिजिकल वर्ल्ड में एक बैलेंस, एक संतुलन क्रिएट करना। चौथा, इमेजिनेशन, आपकी सोच, कितना नए तरीके से आप सोच सकते हो। और फिफ्थ है रेजिलियंस। तो उसी के साथ मैं एक स्टैटिस्टिक देना चाहता हूँ, ज़्यादा फिलोसफी से जाने के बदले एक मैं नंबर ही दे देता हूँ। 27,000 2018 से 2018 में जो ITA के स्टूडेंट्स पास आउट हुए थे, तो उनमें से अनएम्प्लॉयड के नंबर है। तो उसके रिगार्डिंग बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है अभी। तो ऑब्वियसली हेल्थ एंड सेफ्टी का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये वायरस के सिचुएशन में। लेकिन अगर वो नंबर रखे तो इतने स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड है और अनएम्प्लॉयबिलिटी जो कि एम्प्लॉय करने की के लायक, तो वो और भी कम है। तो उसी के माइंड में रखते हुए आई थिंक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद को जॉब देना या जॉब्स क्रिएट करना एक एंटरप्रेन्योर बन के, तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा ओपिनियन है ऑन व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट और क्यों लोगों को एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। और उसी के साथ आई थिंक स्टूडेंट्स हमारे अगर कुछ बोलना चाहेंगे वन बाय वन 1 से 1.5 मिनट में, आपको क्यों लगता है कि एंटरप्रेन्योर बनना क्यों ज़रूरी है या एंटरप्रेन्योर बनने का महत्व क्या है। सो फर्स्टली दिव्या जी। दिव्या प्लीज अपना अनम्यूट करके। हाँ हेलो हाँ सुन सकते हैं आपको, प्लीज बोलिए। सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देना। हाँ आप दिव्या, आपको क्यों लगता है कि किसी को एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहिए और एंटरप्रेन्योर बनने का महत्व क्या है किसी की जिंदगी में। एंटरप्रेन्योर बनने का महत्व है हम दूसरों की हेल्प कर सकें, जिससे दूसरों का हेल्प हो सके। जो हमारे आसपास दिक्कतें हैं उनको सुलझाने के लिए, यही सब। बहुत बढ़िया, चलो मैं थैंक यू बोलने से पहले उन्होंने माइक म्यूट कर लिया। उसी के साथ साधना। जी सर, एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो सारे रिस्क को लेते हुए अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है या फिर स्टार्टअप करता है। और वही अब एक एंटरप्रेन्योर अगर वो किसी एक न्यू चीज को इनोवेटिव करता है, बनाता है, तो वो अकेले अपने बिजनेस को नहीं कर सकता आगे, तो उसे एक टीम बनानी होगी। और जिस टीम के साथ मिलकर वो वर्क करता है उसी को ही एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप भी कह देते हैं। और हमारे जो एनवायरनमेंट है या फिर हमारा जो टाउन एरिया है, वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे यहाँ पर आजकल क्या हो रहा है कि कुछ जगहों पर तो हैं ऐसे सोर्स जहाँ पर लोग जॉब कर सकते हैं, पर कुछ जगहों पर जॉब के सोर्स नहीं है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है जॉब्स के लिए। अगर उस जगह पर एंटरप्रेन्योर होंगे और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप्ड होगी तो वहां पर लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वो वहीं पर ही अपना बिजनेस कर सकते हैं या फिर जॉब्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी इंडस्ट्रीज एरिया बनेगा ज्यादा से ज्यादा और लोगों को जॉब मिल सकेगी इजीली। बहुत बढ़िया। और इसके बाद श्वेता। तो मेरे को लगता है कि एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि मतलब खुद एक बिजनेस स्टार्ट करना और साथ में अपने साथ कुछ लोगों को और बिजनेस मतलब उन लोगों को जॉब देना। क्योंकि हमारे इंडिया में बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जैसे कि अभी कोरोना में तो बहुत ज्यादा ही हो रही है। तो एंटरप्रेन्योर का एक आई थिंक जो नेटवर्क की दिक्कत आती है वो श्वेता को भी हिट कर गए फाइनली। इतने दिन उनका अच्छा चल रहा था हर क्लास में या हर सेशन में। तो उसी के साथ आई थिंक जब तक श्वेता वापस आ जाते हैं, मोनिका आप बताना चाहेंगे। गुड इवनिंग ऑल टीचर्स।
गुड इवनिंग, मैं गुड इवनिंग। कि एंटरप्रेन्योर वो होता है, मतलब फर्ज होता है कि वो एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट। हाँ श्वेता, आपको फिर से मौका दिया जाएगा, अभी मोनिका बात कर रहे हैं। हाँ मोनिका प्लीज। एंटरप्रेन्योर एक अच्छा वो होता है जो अपने बिजनेस आइडिया को किसी भी चीज में बिजनेस में कन्वर्ट कर ले, और एक अच्छा अगर कुछ भी वो करना चाहे, अच्छा बिजनेस, कुछ भी रिस्क उठा करके वो उस काम को आगे बढ़ा सकता है। और अगर हम जैसे कि आजकल के टाइम में देख रहे हैं, ना ही गवर्नमेंट जॉब में कोई भी वो है, कोई गवर्नमेंट जॉब भी नहीं कर सकता है। अगर वो करना भी चाहे तो इतनी जल्दी किसी को सीट नहीं मिलती। अगर हम अपना खुद का बिजनेस करेंगे तो हम अपनी फैमिली को भी आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ लोगों को भी रोजगार देंगे, जिससे आने वाले समय में एक जो भी हमें देखेगा या हमसे इंकरेज होगा, वो आगे अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाने की सोचेगा। थैंक यू सर। श्वेता। अकॉर्डिंग टू मी एंटरप्रेन्योर इंडिया में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री भी है और यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स की ज़रूरत भी है, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। तो एक एंटरप्रेन्योर का फर्ज है कि मतलब वो एक बिजनेस भी स्टार्ट करे और साथ में लोगों को भी जॉब दे। बहुत बढ़िया। सुजाता, आई थिंक सुजाता मुझे गाली दे रही होंगी कि हर बार उन्हीं को आखिरी मौका दे रहा हूं मैं। सुजाता प्लीज बताइए। सर, एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो खुद अपने आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट कर सके और अपने साथ साथ लोगों को भी रोजगार दे सके, ताकि वो अपने लिए तो कुछ करे ही और लोग जो और बेरोजगार लोग हैं उनके लिए भी कुछ कर सके। क्योंकि हमारी जो कंट्री है उसमें बेरोजगार लोग बहुत हैं, क्योंकि एजुकेशन सभी के पास है लेकिन किसी को ये मौका नहीं मिल पाता कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सके, इसलिए उन्हें एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। बहुत बढ़िया। अभी लेट्स सी, आदित्य 1.5 मिनट 90 सेकेंड्स में एंटरप्रेन्योर की इम्पोर्टेंस क्या है? ओके अर्नब गोस्वामी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से कवर कर दिया। तो मैं बस इतना उसमें ऐड करना चाहूंगा कि देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि स्टूडेंट्स का इतना एक रिफाइंड पर्सपेक्टिव है, इतना एक बहुत क्लियर सोच है और बहुत ही अच्छे ख्यालात है। तो जैसे कि अभी आजकल बात भी चल रही है आत्मनिर्भर भारत की और वोकल फॉर लोकल की, तो आई थिंक अभी सबसे ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे और इसके बाद, क्योंकि प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ रही है धीरे धीरे, और जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उसको सॉल्व करने की, और उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जॉब्स क्रिएट करने की, नौकरियां क्रिएट करने की। और एक स्टेटिस्टिक शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ। आई थिंक ये बहुत पॉपुलर स्टेटिस्टिक भी है कि 50% भारत के सारे पॉपुलेशन में 25 साल के नीचे से लोग हैं। सो हमारी बहुत यंग पॉपुलेशन है, हमारी 50% पॉपुलेशन 25 साल से कम उम्र की है। तो इसका पोटेंशियल बहुत है, और ये जो पोटेंशियल है ये जॉब्स क्रिएट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीके से यूज हो सकता है, जहां पे ना ही सिर्फ हम अपने युवा के लिए जॉब्स क्रिएट करें, बल्कि हो सकता है हम फ्यूचर में विदेशी लोगों के लिए भी जॉब्स क्रिएट करें। हम दुनिया पर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा एक एम होता है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो हम लोकल, नेशनल और ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपने इस छोटे से इनिशिएटिव के थ्रू, जो कि शायद से धीरे धीरे बहुत बड़ा बन सकता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है ये, मतलब जो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है इस पे काम करने के लिए। एंड आई रियली वांट टू थैंक उद्यम लर्निंग फाउंडेशन फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई रियली वांट टू थैंक द स्टूडेंट्स जो कि बहुत खुशी से और बहुत ही ओपनली इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू कर रहे हैं। और आई होप कि हमारे ज्यादा से ज्यादा युवा एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सेप्ट करेंगे और अपने स्टार्टअप शुरू करके, अपने बिजनेस शुरू करके खुद के लिए भी स्वावलंबी बनेंगे और बाकियों के लिए भी नौकरियां क्रिएट करेंगे। Great, 90 seconds. Mr. Sen, you want to add something? No, Mr. Sen, ready to pounce on the time. नहीं, अभी जो मौका मिल गया तो मैं दूसरा बारे में बात कर लेता हूँ। तो पहले तो मैं 5 स्किल के बारे में बात कर लिया। तो अभी द नेक्स्ट थिंग जो मैं आई वांट टू टॉक अबाउट इज मेंटर। सब एंटरप्रेन्योर को 1, 2 या 3 मेंटर मिल जाए तो उस इतना ही सफलता के लिए वो आसान होगा। सो मेंटर क्या चीज होता है? व्हाट इज अ मेंटर? हु इज अ मेंटर? सो मेंटर का M
M जो स्टैंड करते हैं, M इज फॉर मोटिवेटिंग, तो जो आदमी आपको मोटिवेट कर रहा है। E, मेंटर में E आता है नेक्स्ट, तो E इज फॉर एक्सप्लोर, नया नया चीज को देख के एक्सप्लोर करने, डिस्कवर करने के लिए। N इज फॉर नर्चर, जो आपके लिए आपके साइड में ऑल द टाइम खड़ा होंगे, जब आपका जो फेलियर भी होगा खड़ा रहेंगे, सक्सेस भी होगा तो बताएंगे कि हाँ सक्सेस हुआ लेकिन ये खत्म नहीं है, आगे आगे जाना है, तो नर्चर करना है। T, आपने एक टीम वर्क के बारे में बताया, सो T इज टीम वर्क कैसे हो सकता है, टीम वर्क आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, टीम वर्क लेके कैसे आगे निकल सकते हैं। O, आगे में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, हम लोग सब ऑल द टाइम सब अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पाते हैं, तो मेंटर जो है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपको बता सकते हैं कि इधर में अपॉर्चुनिटी है, उधर में अपॉर्चुनिटी है। और आर वो जो अपॉर्चुनिटी दिखाई दिया, वो जो मेंटर ने जो मोटिवेट किया, एक्सप्लोर किया, ये सब कुछ रियलाइज करना आपके पास लेना है, आप कैसे इसको हासिल कर सकते हैं। तो ये हो गया मेंटर। तो मेरा ख्याल में सब एंटरप्रेन्योर को 1, 2 या 3 मेंटर होना चाहिए। ये दूसरा दो रोल होता है, तो एक रोल मेंटर प्ले कर सकते हैं। सो आपका मेंटर एक होगा, इट कैन बी योर फादर, कैन बी योर मदर, कैन बी योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी हो, टीचर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो आपके लिए ये जर्नी में, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपके साथ साथ चलेंगे। समंत 2.5 minutes। ग्रेट। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, मैं ऑफकोर्स मिस्टर सेन तो है ही हमारे साथ, और साथ में अभी तक जितने भी पॉडकास्ट हुए हैं, आई थिंक मैंने लिस्ट बना रखा है, आई थिंक अभी तक हमारे पास 70 से ज़्यादा गेस्ट आ चुके हैं पॉडकास्ट पे। मैंने एक्चुअली आई थिंक 71 इज़ द करेक्ट नंबर। तो उसमें से 70 के 70 भी नहीं तो 65, करीब 65 मेंटर्स ऐसे हैं जो कि प्रोबोनो के साथ काम करना चाहते हैं टू हेल्प आप लोगों को जो कि फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स है। तो बिल्कुल अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए कि सर मेरा ये आइडिया है, मुझे इस फील्ड में आइडिया नहीं है कि मैं कैसे आगे ले जा सकूं, तो बिल्कुल हमारे साथ कनेक्ट कीजिए और हम उन एक्सपर्ट्स के साथ आपको कनेक्ट करेंगे जो कि आपको इंडस्ट्री के ग्राउंड रियलिटी यानी कि जो एक्चुअली में होता है फील्ड पे, उसके बारे में बता के आपको हेल्प करेंगे। तो उसी के साथ ऑफ कोर्स अक्षय, आप बताना चाहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप का महत्व क्यों है किसी की लाइफ में? ओके, आई थिंक काफी अच्छा कवर किया जो हमारे आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं कि पर्सपेक्टिव अगर ग्लोबली देखा जाए या जैसे आदित्य ने बोला अगर नेशनली देखा जाए, पर एज एन इंडिविजुअल राइट, इसके ऊपर मैं थोड़ा लाइट थ्रो करना चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योर बनने से क्या होता है। तो मेरे एक्सपीरियंस में जितने भी मेरे फ्रेंड्स एंटरप्रेन्योर्स हैं राइट, और जितने भी हम कोर्सेज कर चुके हैं उसमें आई थिंक आपकी एक लर्निंग कर्व बहुत अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया रहता है जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं राइट। कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज, आपका जो ग्रिट है, मतलब आप जितना परसिस्टेंट हो जाते हैं राइट, आई थिंक ये सब आपके काफी इम्प्रूव होते हैं। तो आई वुड वांट टू ओनली से कि द न्यू पॉइंट दैट आई वुड वांट टू ऐड इज कि आपका खुद का लर्निंग जर्नी काफी जल्दी होता है राइट, और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है बिकॉज आप एज अ वन पर्सन या एज अ टीम ऑफ मे बी 2 or 3 हाउएवर बहुत चीजें करते हैं और आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है उसको करने का। एंड आई थिंक कि एज फॉर एन इंडिविजुअल ये एक यू नो मतलब दिस इज द व्हाई ऑफ व्हाई एनीवन शुड और वुड वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। एंड बाकी तो कंट्री के लिए बेटर है, जॉब्स नहीं है, दैट्स द मैक्रो पर्सपेक्टिव, सो दैट आई एग्री विद ऑल द पॉइंट्स दैट हैव बीन सेड। ग्रेट। हरीश जी, आप बताना चाहेंगे? आई थिंक वन लाइन कि अभी तक हमारी जो सोच है वो एक जॉब सीकर की रही है कि हमें नौकरी चाहिए, और मुझे लगता है कि अभी अपन करंट स्टेटस को देखें तो जितने भी जॉब क्रिएटर्स हैं वो बहुत कम पढ़ रहे हैं। देयर आर नॉट इनफ जॉब क्रिएटर्स आउट देयर। तो क्या हम एक बड़े वर्ग को जॉब क्रिएटर्स बना सकें जो कि इस पूरे बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकते हैं?
So we need more job creators than job seekers. Right. और मैं दो चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये जो आकाश सिंह आए थे हमारे, आई थिंक बहुत ही अर्ली आए थे हमारे पॉडकास्ट के लिस्ट में। तो उन्होंने जो बताया था, उनके दादाजी से एक बात चलते रहती है बार बार, हर महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, कि उनके दादाजी बोलते हैं तू ये बिजनेस छोड़ के जॉब कब करना शुरू करेगा। तो आकाश का रिप्लाई था, दादाजी मैं जॉब लेने के लिए नहीं, मैं जॉब दे रहा हूँ दूसरे लोगों को। मैं जॉब ले नहीं रहा हूँ किसी से, मैं खुद जॉब दूसरों को दे रहा हूँ। तो फिर कौन सा बेटर होगा, आप ही बताइए। और आई थिंक दूसरा एक होगा, एक्सक्यूज मी, अगर आप जॉब करना चाहते हो, आप जॉब कुछ भी करते हो, तो आपको जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन आती है आप वही करते हो कि आप ये पर्टिकुलर काम कीजिए। तो आपको सीखने की स्कोप नहीं होती है कि आप अगर मान लीजिए आईटी में काम करते हो तो आप आईटी में ही काम करो, शायद पैसा अच्छा मिल जाए लेकिन आप आईटी में काम करते हो। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर, मैंने इस 1.5 साल एक एंटरप्रेन्योर की जिंदगी जी के, मैंने स्टार्टिंग से तो रहा नहीं है प्रोबोनो पे, लेकिन 1.5 साल से जो मैंने लाइफ एक्सपीरियंस किया है, जो कि है आप हर चीज सीखते हो। अगर आपको ये चीज नहीं आती है तो आप बोल सकते हो खुला खुला कि मुझे नहीं आता, लेकिन आप वहीं पे रुक रहे हो कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं सीखूंगा, तो वो गलत है। एक एंटरप्रेन्योर बनने पे आप सब कुछ सीखते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, लोगों से बात करना, मीटिंग कंडक्ट करना, एक डॉक्यूमेंट बनाना, एक रिपोर्ट बनाना, और साथ में एक कोई प्रोडक्ट को आपको बेचना, या फिर ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आप सीखते हो। और मैं खुद अभी भी सीख रहा हूँ। आई थिंक आदित्य इसको प्रूफ देंगे कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो उसी के साथ एक अगला टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। जो स्किल्स एंटरप्रेन्योर को जरूरत होती है, अभी मैंने थोड़े तो बता दिया, आई थिंक स्पॉइलर दे दिया मैंने, लेकिन आपको क्या लगता है, 2 आपके हिसाब से 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स क्या होते हैं? और आई थिंक ऑडियंस के लिए भी एक क्वेश्चन जाता है कि दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है कि 2 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एंटरप्रेन्योर के स्किल क्या होते हैं? और मैं शुरू करना चाहता हूँ अभी तो सुजाता से। अभी आई थिंक इनको पहले दे देता हूँ मैं ऑप्शन। सर, सबसे पहले तो हमारे पास एक ऐसा आइडिया होना चाहिए जिसपे हम एक बिजनेस स्टार्ट कर सके। फिर उस आइडिया के ऊपर, मतलब जैसे कि पैसों की जरूरत होती है, तो कितने पैसे लगेंगे, वो पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से होगा। और दूसरा कि हमें कौन सपोर्ट कर सकता है, पेरेंट्स करेंगे या कोई फ्रेंड कर सकता है। और फिर हमें ये देखना है कि वो जो हमारा आइडिया है उसे हम बिजनेस के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो वो कौन से एरिया में चल सकता है, कि मतलब कहाँ पे, कि जो जिस चीज के बारे में हम सोच रहे हैं उसकी जरूरत कौन सी जगह पे है। राइट, इसके बाद मोनिका। सर, सबसे इम्पोर्टेंट स्किल ये है कि हमने जो भी हमने अपना आइडिया डिसाइड किया है, अगर हम उस पे काम कर रहे हैं तो हम किसको साथ लेकर के करेंगे। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, अगर कोई फ्रेंड जो सबसे ज्यादा हमारे साथ रहे, तो अगर वो हमारे साथ रहेगा तो हम उस आइडिया को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टीम है इसमें। अगर वो टीम हमें सपोर्ट करेगी तो हम उसको आइडिया को बहुत अच्छे से आगे, बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर जो हमारी टीम बनती है, तो अगर हम कोई भी बिजनेस, अपना एक ऐसा आइडिया बताओ फैमिली को, जिसमें फैमिली को लगे कि हाँ वो हमें सपोर्ट कर सकती है और ये आइडिया बेटर है इसका। अगर वो आइडिया हमारा ऐसा होगा जिससे हमें फैमिली सपोर्ट कर सके, तो हमें फैमिली भी सपोर्ट करेगी। और छोटा मोटा बिजनेस अगर हमें करना भी है तो सबसे पहले छोटा स्टेप लें, छोटी टीम बनाएं, उस पर वर्क करें, वो धीरे धीरे करके बड़ा, एक टाइम पे बड़ा बिजनेस में बदल जाएगा। बढ़िया। लेट्स सी, साधना। आई थिंक साधना एग्जिट कर गई है। आई थिंक कोई नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है। दिव्या। सबसे पहले हमें अपने बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए और उसके बाद ही स्टार्ट करना चाहिए।
ठीक है, ग्रेट। आई थिंक वॉइस, आई होप सब लोग को सुनाई दे दिया होगा। बीच में एक मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ। दिव्या प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, थैंक यू। पुष्कर दास का एक कमेंट है, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर स्किल्स इज नॉलेज एंड इंटरेस्ट फॉर द LOB. Aditya, you want to chime in on this? Line of LOB. business? LOB. Line of business, I think. Oh, अच्छा, Okay. you use a jargon. मेरे jargon का knowledge बहुत poor है. I think he means line of business. Yeah, probably, yeah. And second quality being willingness to take risk. एक रिस्क लेने की चाह। और लेट्स सी, श्वेता आप बताना चाहेंगे? सर अकॉर्डिंग टू मी एंटरप्रेन्योर्स की जो स्किल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टू है वो है स्किल और सेकंड क्रिएटिविटी, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स को रिस्क टेकिंग होना चाहिए, क्योंकि मतलब हर वो रिस्क ज़्यादा लेना पसंद करते हैं एंटरप्रेन्योर्स। और क्रिएटिविटी की मतलब एंटरप्रेन्योर्स को अलग अलग क्रिएटिविटी ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। तो आई थिंक ये दोनों ग्रेट। मैं बताना चाहूँगा 2 स्किल जो कि मैंने सीखा है। एक सीखने की चाह, जो कभी रुकना नहीं चाहिए, ये एक स्किल है। दूसरा पेशेंस। हिंदी में कोई ट्रांसलेट करना चाहता है? पेशेंस क्या होता है? आई नो, आई रिक्वेस्ट was please repeat. सब्र, yeah. धैर्य। हाँ, धैर्य। Right, there you go. Even Mr. Sen and I, both of us need a little bit of Hindi translation. Aditya, 2 skills quickly. हाँ, मेरे को लेकर क्विकली बोलने की हमेशा जरूरत पड़ सकती है, तो ओके। सो 2 skills. फर्स्ट वुड बी कि काम करने की चाह। मतलब होता है ना, कई बार हम ये सोचते हैं कि किताबें पढ़ के सीख लेंगे, तो सिर्फ किताबें पढ़ने से फायदा नहीं, सिर्फ वीडियोस देखने से फायदा नहीं। आप में से जो भी लोग अभी वीडियोस भी देख रहे हैं और हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे एक बड़ी सी विनती करूंगा, कुछ करके जरूर दिखाना है। सो एक तो करने की चाह, और दूसरा जो किया उससे सीखने की चाह। क्योंकि आप जब करोगे कुछ, तो वो उसमें कुछ गलती तो आएगी, और वो गलती से सीखकर उस काम को और बेटर कर सकते हो। तो वो आपको एज एन एंटरप्रेन्योर धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहेगा, क्योंकि आप करते रहोगे, करने से सीखते रहोगे और फिर करते रहोगे। तो वो साइकिल ही अपने आप में आपको एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बना देगा। राइट। साधना, आई थिंक आप बीच में कट ऑफ हो गए थे, तो मैं पूछ रहा था एक एंटरप्रेन्योर को सबसे इम्पोर्टेंट 2 स्किल क्या जरूरत होती है? क्या सर क्वेश्चन रिपीट कर दो आप एक बार। हाँ, साधना, मैं पूछ रहा था एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे जरूरी 2 स्किल क्या होती है? सर सबसे इम्पोर्टेंट स्किल फर्स्ट तो ये होती है कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए उसकी, तभी वो अपने बिजनेस को जो है बिल्डअप कर पाएगा या उसके बारे में सोच पाएगा। और सेकंड है कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए टीम बिल्डिंग की ट्रिक आनी चाहिए उसे, कि किस तरीके से वो अपने टीम को बिल्डअप कर सकता है। तो मेरे ख्याल से तो यही है मेन 2 स्किल्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थिंक इस सेगमेंट के लिए सो सॉरी हरीश, अक्षय और मिस्टर सेन को आई हैव टू कट ऑफ देयर टाइम। लेकिन द नेक्स्ट टॉपिक जो कि मैं बात करना चाहता हूँ, आई थिंक ये स्टूडेंट्स पे ही जाएगा फिर से, कि आपके पास एक आइडिया ऑलरेडी है। ये शायद अभी एक बड़ा बिजनेस तो नहीं बन चुका है, लेकिन आपके पास एक आइडिया है, आप क्या करना चाहते हो या फिर आप क्या करने की चाह रख रहे हो फ्यूचर में। तो मेरा सवाल है कि आपकी जर्नी कैसे रही एक ITI स्टूडेंट होने के नाते, जहाँ पे ज़्यादातर कॉन्वर्जेशन जो आपकी बात होती है कई कंपनी पे या गवर्नमेंट जॉब की अप्रेंटिसशिप करने की। तो आपकी एक ITI स्टूडेंट होने के नाते आपकी जर्नी कैसे रही इस आइडिया को सोचने के लिए, इस आइडिया तक पहुंचने के लिए, और आपको क्या क्या चीज़ें आसान लगे, क्या क्या अच्छे चीज़ें हुए और क्या क्या दिक्कतें हुई इस आइडिया तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले दिव्या। और अपना सभी अपना आइडिया भी एक जल्दी से प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए सभी के लिए। मेरा पार्लर खोलना, अभी तक तो मेरी जर्नी अच्छी है। इसमें मेहंदी डिजाइन भी है जो कि मैं करती हूँ, और
फेशियल है, क्लींजिंग है, ये सब करती हूँ। बस यही। चलो बहुत बढ़िया। श्वेता? मेरा बिजनेस आइडिया है पेंटिंग्स एंड क्रिएटिविटी का। तो मेरी जर्नी अभी तक तो मतलब बहुत सपोर्टिंग रही है, सबने बहुत सपोर्ट किया है। और जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो मेरा प्लान है वो ये था कि मतलब मेरे को स्टार्टिंग से बिजनेस ही स्टार्ट करना था, तो इसलिए पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया। ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं था अभी तक, तो इसलिए अच्छी चल रही है जर्नी। राइट। मोनिका, सुजाता, आई थिंक आप दोनों का बिजनेस साथ में कर रहे हो अभी तक तो जो शुरुआत हुई है, तो बताना चाहेंगे मोनिका और सुजाता? सर सबसे पहले तो मैं प्रो बोनो टीम को थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि अगर शायद वो हम लोगों के लाइफ में नहीं आते तो हम शायद कोई आइडिया जनरेट ही नहीं कर पाते या फिर उसके बारे में सोच ही नहीं पाते। क्योंकि हम लोगों को क्या था कि पढ़ना है और कुछ ना कुछ करना है लाइफ में, कि पढ़ाई से ही करना है सिर्फ। लेकिन जब से मतलब आप लोगों ने हमारी क्लास लेना स्टार्ट किया है, तब से हम लोगों को लगा कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए, शायद हम अब आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। जब आप लोगों ने हमें बताया और कहा कि अपने आइडिया के बारे में सोचो, जो कि हम ऑलरेडी मतलब मेरे भाई वगैरह हैं जो सिलाई करते हैं, स्टिचिंग करते हैं। तो सर मैंने सोचा, क्योंकि मेरे पापा का भी सपना था कि ये आगे चल के अगर इसकी शादी हो गई या कुछ भी हो गया तो ये अपनी बुटीक खोल सकती है, लाइफ में आगे चल के बहुत काम आएगा इसके, अगर ये अपना बुटीक खोलती है। तो मैंने उसी आइडिया पे जोर दिया और सोचा क्यों ना कि मैं अपनी एक खुद की बुटीक खोलूं, उसके बारे में सोचूं, क्योंकि फैमिली से भी सपोर्ट मिलेगा और सब लोगों से सपोर्ट मिलेगा। और एक बुटीक का डिसीजन ऐसा है कि अगर बाई चांस हम लोगों की शादी भी हो जाती है तो वहां पर भी शायद कोई मना नहीं करेगा अपना खुद का बुटीक खोलने के लिए। तो मैं सबसे पहले इसमें फ्रेंड्स की जरूरत थी कि मतलब कौन साथ होना चाहिए, तो सुजाता जिसने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इस चीज में, वो भी मेरे साथ एकदम 50-50 की भागीदार है। क्योंकि उसने भी सोचा कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए आगे चल के। हम लोगों ने कंटिन्यू क्लास ली और आइडिया को सोचते रहे। फिर हम लोगों ने यूट्यूब चैनल पर अपना वीडियो अपलोड किया, जिसका फर्स्ट डे का रिस्पांस बहुत ही अच्छा था। 94 व्यूअर्स थे हम लोगों के और 32 सब्सक्राइबर, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा था। जिसको देख करके हम लोगों को लगा शायद जब हमारा फर्स्ट डे का रिस्पांस इतना अच्छा है, अगर हम क्यों ना और वीडियोस डालेंगे तो रिस्पांस अच्छा आएगा। और जब हमें पता चला, क्योंकि कई लोग जो जान पहचान के थे उन लोगों ने भी हमसे कांटेक्ट किया, और वैसे भी पता चला तो उन लोगों ने हमसे सबसे पहले ये पूछा कि आप हमारे सूट सिलोगे। तो सुन करके बहुत अच्छा लगा ये सारी चीजें, कि मतलब लगा कि हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं और लाइफ में कुछ कर सकते हैं। अगर अपनी छोटी सी भी बुटीक खोलेंगे तो क्या पता वो आगे चल के एक बड़ी कंपनी में बदल जाए। कुछ भी हो सकता है। अगर हम अपने आइडिया पे पूरी शिद्दत के साथ उस पर काम करेंगे तो जरूर लाइफ में कुछ ना कुछ करेंगे। और मैं साथ में उद्यम लर्निंग फाउंडेशन को भी एक शाउट आउट देना चाहता हूँ फॉर चूजिंग अस ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए। सो थैंक यू टू उद्यम लर्निंग फाउंडेशन। आई थिंक मोनिका जी मेंशन करना भूल गए, क्योंकि ज्यादातर प्रो बोनो कांटेक्ट में रहता है स्टूडेंट्स के साथ क्लास लेते हुए, बट उद्यम लर्निंग फाउंडेशन इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर वी आर डूइंग। सो शाउट आउट टू देम एज वेल। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मोनिका का या दिव्या या साधना का और श्वेता का सभी के यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम चैनल्स कमेंट सेक्शन में दिए गए हैं, एंड आई थिंक विल पोस्ट देम वन मोर टाइम। जब पॉडकास्ट से एंड होगा आखिरी में एक और बार हम पोस्ट करेंगे। सो आप प्लीज सपोर्ट करिए। अगर इफ यू वांट टू बाय देयर प्रोडक्ट्स, मैं एक नॉर्मल पर्सन, एक एवरेज पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, आपको लेना है, आपको सपोर्ट करना है, सो प्लीज डू सपोर्ट और प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल्स। बहुत ही मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो। लेट्स सी, साधना अगर आप बताना चाहेंगे। सर मेरा मेनली ये था कि मैं टीचिंग करना चाहती थी शुरू से ही, और मैंने कुछ टाइम टीचिंग भी की है। मैं साइंस टीचर ही बनना चाहती हूँ ऑलमोस्ट, पहले तक तो यही था, अभी भी यही सोच रही हूँ। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल करीब 1 साल पहले 1 मई 2019 को बनाया था, स्टडी फॉर यू के नाम से। तो वहां पर मैंने अपनी वीडियोस अपलोड की थी, कुछ केमिस्ट्री की 11th क्लास की, कुछ 12th की फिजिक्स की और कुछ 10th क्लास की वीडियोस।
पर लेकिन बीच में क्या हुआ कि मैंने स्कूल और इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता था। देन उसके बाद मैंने आईटीआई ज्वाइन कर लिया, तो जिसकी वजह से मेरी वीडियोस बीच में स्किप हो गई आना, तो उसके बाद मेरा चैनल बीच में बिल्कुल बंद पड़ गया। देन अब जब आप सबने क्लास लेना स्टार्ट किया उद्यम फाउंडर की तरफ से, तो मुझे लगा वैसे भी लॉकडाउन है, तो फिर मैंने कुछ न्यू करना स्टार्ट करा। मैंने एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड ही कुछ वीडियोस अपलोड की अपने चैनल पे, जिसपे काफी व्यूज भी हैं। और पहले जो करीब मेरे 45 अप्रॉक्स थे सब्सक्राइबर्स, अब मेरे सब्सक्राइबर्स अप्रॉक्स 63 या 67 के अप्रॉक्स हैं। और व्यूज भी काफी बड़े हैं, क्योंकि कंटेंट थोड़ा सा चेंज हो गया है। वैसे मैं ऑलमोस्ट साइंस ही डाल रही थी बिकॉज स्टार्टिंग में, और मेनली यही है मेरा अब तक जो भी है मेरी जर्नी का, बाकी कुछ न्यू नहीं है। ग्रेट। और श्वेता फाइनली, आई थिंक श्वेता आपने बताया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, सो सॉरी, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। बहुत मेरे सामने बहुत सारे स्क्रीन से बहुत सारे लोग हैं, और सभी को कोटा आज पूरा करने का आज मेरा ऑब्लिगेशन है और सबका सुनना भी है। तो मैं अभी आई थिंक मिस्टर सेन विल बी हैप्पी, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स को मैं एक 5-10 मिनट के लिए साइड रख रहा हूँ, और आई एम गेटिंग टू आदित्य, मिस्टर सेन, हरीश एंड अक्षय। तो आपका वर्ड्स ऑफ एडवाइस क्या होंगे एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक बडिंग एंटरप्रेन्योर, एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के लिए आपका एडवाइस क्या होगा? आई वांट टू स्टार्ट ऑफ विद मिस्टर सेन। Now, Mr. Sen, you have, I don't know, maybe close to 3 to 5 minutes. Wow. Okay. I'll say like this. ऐसा बताऊंगा कि कोई एंटरप्रेन्योर मेरे पास आए और बोले कि मेरा बिजनेस में आप थोड़ा इन्वेस्ट कर लो, पैसा डाल दो, तो मैं क्या चीज देखूंगा, क्या चीज मैं what are the things I look for? मैं 3 चीज देखूंगा। पहले बार ये पैसा डालने के पहले मैं 3 चीज देखूंगा। 3 चीज में क्या है? द फर्स्ट थिंग कि इंटेलिजेंस, ये जो एंटरप्रेन्योर जो है उनका इंटेलिजेंस क्या है। ना इंटेलिजेंस माने ये जो क्लास में बहुत अच्छा मार्क्स ले आए, बहुत बड़ा सर्टिफिकेट ले आए, ये नहीं। इंटेलिजेंस है कि एकदम रीजनेबल कॉमन सेंस जो बोलते हैं, that. So I look for that intelligence. The second thing, तो दूसरा चीज जो है एंटरप्रेन्योर में मैं देखूंगा कि एंटरप्रेन्योर के अंदर में एनर्जी लेवल है कि नहीं। तो एनर्जी लेवल का जो मतलब होता है कि जितना बार फेल हो उतना बार फिर वापस खड़े होकर आगे चलने का। समझिए 5 बार फेल हो गया, तो 5 बार फेल होने के बाद 7 बार खड़ा होना है। सो यू फेल 5 times, यू गेट अप 7 times। मैं ये ट्रेट देखूंगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का जर्नी में वो ऑब्स्टिकल आएगा, प्रॉब्लम आएगा, मुसीबत आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन आगे बढ़ना है, वो उसको ऊपर सॉल्व करके आगे निकालना है। लेकिन ये 2 क्वालिटी जो है एक एंटरप्रेन्योर के, ये इसका कोई काम नहीं होगा, ये 3rd क्वालिटी नहीं होना चाहिए। सो 3rd क्वालिटी जो है ये है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का माने ये है कि जब कोई आदमी नहीं देख रहा है मेरे को, मैं फिर भी ठीक जो काम है वही करूंगा, मैं शॉर्टकट नहीं लूंगा। मैं जितना टाइम देना है, जितना हार्ड वर्क करने का है, मैं वो ही करूंगा। आई विल बी ट्रू टू माई सेल्फ, दैट इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का हिंदी मेरे को पता नहीं है, सो आदित्य कैन हेल्प अस आउट एक्चुअली। तो ये 3 क्वालिटी आई विल लुक फॉर। ये 3 क्वालिटी जिस एंटरप्रेन्योर के पास होगा, उसी बिजनेस में मैं इन्वेस्ट कर लूंगा। सो मेरा जो एडवाइस, सजेशन जो भी है मैं बताऊं, ये 3 क्वालिटी के ऊपर थोड़ा ध्यान देके थोड़ा काम कीजिएगा, आप 100% सक्सीड करेंगे। ये आपका सक्सेस कोई रोक नहीं पाएंगे, ये तीनों आपके पास होगा। तो थैंक यू सो मच, आई टुक वेरी लेस टाइम।
All I can say is thank you for adhering to the timeline. Akshay, any words of advice for future entrepreneurs? I think just in addition to this, right, एक टीम या एक entrepreneur जो कि प्रॉब्लम को समझ पाए, राइट, आई थिंक लाइक दैट इज अ बिग क्वालिटी बिकॉज द प्रॉब्लम ऑल्सो कीप्स चेंजिंग. तो अगर आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है या स्किल है कि आप प्रॉब्लम जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है या प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, अगर आप उसको समझ पा रहे हो, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई लुक फॉर. एंड सेकेंडली जस्ट लाइक हसलिंग, राइट, मतलब आप एक्ट करो, चाहे आप फेल हो बीच बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप कुछ करो, राइट. बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की. तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप का जितना मैं समझता हूँ पर्सनली, मैंने ये देखा है कि जब तक आप हसल नहीं करते, जब तक आप कुछ ना कुछ एक्शन नहीं करते रहते, तब तक आप सक्सेस के पास नहीं पहुंचते. तो दीज आर द टू थिंग्स दैट स्टैंड आउट फॉर मी. हरीश? तो मुझे लगता है कि कस्टमर एक बहुत बड़ा प्लेयर होता है किसी भी वेंचर के लिए, राइट. तो आप उस कस्टमर को कैसे सर्व कर रहे हो, कैसे उससे फीडबैक ले रहे हो, बेसिकली लगातार. बाकी सारी चीजें काफी मतलब मोस्टली कवर हो गई हैं, पर मुझे लगता है कि कस्टमर को कि बेसिकली आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, आप सामने वाले की जिंदगी को कैसे आसान बना रहे हो, ऐसा जो भी आप ऑफर कर रहे हो, अगर उसको आपने लगातार ध्यान में रखा, कस्टमर फोकस है, जो कस्टमर ओरिएंटेशन है, देन आई थिंक इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस. बट एक और चीज जो हालांकि सेंस आपने भी कही और अक्षय ने भी कही, मैं और जो जिद जो वर्ड है वो शायद बहुत नेगेटिव टर्म्स में कई बार यूज होता है, पर मुझे लगता है कि एक कुछ कर गुजरने की जो जिद है वो होना बहुत जरूरी है. अदरवाइज कई बार एक दो बार असफल होते ही हमें लगता है कि नहीं, कि अब तो शायद मैं डूब गया, पर नॉट गिविंग अप और वो जिद रखना मन में इज रियली इम्पोर्टेंट. Right, and finally, Aditya? राइट, तो आई थिंक सब लोगों ने कवर कर ही लिया है. मैं इसमें 3 वही चीजें बोलना चाहूंगा जो आई थिंक सबने ऑलरेडी कह दिया है, बिकॉज मैं अग्री करता हूँ उस चीज से. एक है जो कीनेस टू लर्न, जो तुमने मेंशन किया था कि सीखने की चाह. दूसरा है करने का जुनून, एक पैशन हो करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व अपने हाथों से किया जाए, जमीन पे उतर के, या फिर जो भी मतलब आपका मेन सर्विस या प्रोडक्ट है उसको खुद बनाने की चाह शुरू में, वो बहुत जरूरी है. बिकॉज जब तक करा नहीं जाएगा वो आइडिया जमीन पर या पेपर पर या ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में नहीं उतरेगा, तब तक लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा, तब तक लोग उसका यूज भी नहीं कर पाएंगे. तो दैट एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट, दैट पैशन टू इम्प्लीमेंट. एंड थर्ड, as I think all of the dignitaries here mentioned, would be to take kind of the opportunity to learn from failure. अगर आप फेल हुए हो तो वो अंत नहीं है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि क्रिकेट में एक एनालॉजी देते हैं कि अगर एक बॉल मिस हो गई, जैसे अगर ओडीआई में 50 ओवर है तो आपके पास 50 ओवर है खेलने के लिए, लेकिन लाइफ एक अनलिमिटेड टेस्ट मैच है, उसमें ओवर की लिमिट है ही नहीं. जब तक आप मरते नहीं हो तब तक लिमिट ही नहीं है. हर बार आपकी तरफ एक बॉल फेंकी जाएगी और आप हर बार बैट घुमाओगे. जो बैट पे लग गया वो अपॉर्चुनिटी आपने अवेल कर ली, जो मिस हो गया तो आप उस पर रोने बैठने से अच्छा है कि आप अगली बॉल का सामना उतने ही सेम एनर्जी और सेम पैशन के साथ करो. तो दैट एबिलिटी टू गेट अप फ्रॉम फेलियर आई थिंक वुड बी द थर्ड थिंग आई वुड एडवाइस एवरीवन टू adhere to a lot. ग्रेट. और मेरे तरफ से एक ही होगा जो मेरा खुद का लाइफ से है. कोई इंटरनेट पे कुछ पढ़ा आर्टिकल और मैं उसको कॉपी करके नहीं बताऊंगा. तो मेरे एक्सपीरियंस से जो है, अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है और आपको लगता है कि ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आई थिंक वो डिसीजन लेना कि हाँ, मैं अभी जो प्लान थे मेरे उसको छोड़ के मैं अपॉर्चुनिटी ग्रैब करूंगा. अगर मेरे सामने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर उसको छोड़ देना और बाद में उसके रिग्रेट करना या अफसोस होना कि काश वो अपॉर्चुनिटी ले लेता, तो लाइफ कुछ और रहती. 3 Idiots में शायद देख चुके होंगे आप कि इंजीनियर बन जाता, उससे अच्छा फोटोग्राफर बन गया था, तो बाद में 40 साल पीछे के देखता काश फोटोग्राफर बन जाता. तो वो नहीं रहना है लाइफ में, वो रिग्रेट नहीं रहना है.
मेरे लाइफ में एक ही रिग्रेट है, वो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता पब्लिक में क्योंकि एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रहा है, बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अपॉर्चुनिटी आपके सामने है तो आप वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लें तभी के तभी, जाने से पहले। और साथ में दोस्तों एक्सक्यूज मी, और जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए एक पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन है कि आदित्य सर अभी कमेंट सेक्शन में अलग अलग लोन्स या ग्रांट्स के वो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दे रहे हैं, तो अगर कोई भी उसमें इंटरेस्टेड है तो आप उसमें रेफर कर सकते हैं। और फिर आखिरी में यही एक आखिरी टॉपिक से मैं एंड करना चाहूँगा, ये थोड़ा मैं ओपन प्लेटफॉर्म के लिए रख दे रहा हूँ, इसमें कोई ये नहीं कि मैं कौन बात करेगा कौन बात नहीं करेगा, ये मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा अभी। लेकिन आपके फ्यूचर प्लान क्या है, एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर होते हुए आपका फ्यूचर प्लान क्या है, और साथ में आपके फ्यूचर प्लान में अगर किसी को सजेशन देना है कमेंट सेक्शन में, या अक्षय सर या फिर कोई भी अलग स्टूडेंट्स या जो भी पार्टिसिपेंट है कॉल पे, तो इफ़ यू वांट टू गिव एनी सजेशंस तो आप बिल्कुल दे सकते हो। तो आपके फ्यूचर प्लान, आपके बिजनेस आगे ले जाने के लिए तो शुरुआत किससे करें? आदित्य सर आपसे ही शुरू करते हैं, प्रोबोनो से ही, प्रोबोनो का फ्यूचर प्लान, ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया आ जाए कि फ्यूचर प्लान कैसे प्लान करते हैं, फ्यूचर का प्लान कैसे करते हैं। हाँ, तो इसका आई डोंट थिंक कोई मतलब सही मेट्रिक है, इसमें बस अपना एक विजन होता है कि फ्यूचर का क्या प्लान है। तो मेरा प्लान, अगर शॉर्ट टर्म फ्यूचर की बात करें अगले 2-3 महीने में क्या करना है, तो एक तो बड़े दिन से मैंने सोच रखा है कि और करियर काउंसलर्स हमें अपने साथ जोड़ने हैं ऑल ओवर इंडिया से। तो मेरे दिमाग में 100 का नंबर चल रहा था, अप्रैल 15 तक वो डेडलाइन गया, तो अब कोशिश कर रहे हैं कि जून 15 तक हो सके तो उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर ला सके। और बहुत सारे करियर काउंसलर्स ने थैंकफुली रीच आउट किया है। तो आई थिंक एक तो ये प्लान है शॉर्ट टर्म में। दूसरा प्लान है कि ये जितना हमारा पॉडकास्ट है इसको यूट्यूब पे अपलोड करना है और इसके शॉर्ट बाइट्स बना के हर जगह लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए अपलोड करना है। तो ये कुछ छोटे छोटे प्लान्स है, इस पॉडकास्ट को और बड़ा करने का प्लान है। लंबा प्लान अगर मैं बात करूं अगले 5 साल में, और मेरी बातें सुनकर बहुतों को हंसी आ सकती है, विच आई अंडरस्टैंड, तो मैं जब भी मेरे से कोई पूछता है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, तो मैं बोलता हूँ मेरा फ्यूचर प्लान है 80% ऑफ मार्केट शेयर। तो लोग हंसते हैं, अरे 80% तो बहुत अग्रेसिव है, जो कि है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हाई एम करूं। बिकॉज अगर करियर काउंसलिंग की बात की जाए, मैं इसको फुली एक्नॉलेज करता हूँ। मेरे को जब भी मैं कहीं पे बताता हूँ कि मेरी करियर काउंसलिंग की कंपनी है, तो लोग मुझे बोलते हैं कि अरे मेरे दोस्त का भांजा ऐसा कुछ कर रहा है, या फिर मेरे इसका वो कोई ऐसा कुछ कर रहा है। और है, बहुत सारी कंपनीज है करियर काउंसलिंग की। हम सब ने मिलकर कुछ भी नहीं किया अभी तक, कुछ भी नहीं किया। ऐसे मेरा मतलब ये नहीं है कि हम लोग एफर्ट नहीं डाल रहे, लेकिन इंडिया में आप किसी भी गांव में जाकर पूछोगे किसी स्टूडेंट से कि करियर काउंसलिंग क्या होती है, वो भी पूछेगा आपसे क्या होती है। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि इंडिया में 80 से 90% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है करियर काउंसलिंग आज की डेट में क्या होती है, जबकि इतनी सारी कंपनीज ऑलरेडी है। तो मेरा प्लान है कि हम रूरल इंडिया हो, टियर 2 सिटीज हो, टियर 3 सिटीज हो, वहां पे भी पहुंचे, और टियर 1 सिटीज में भी पहुंचे, जहां पर लोगों के पास हाई क्वालिटी करियर गाइडेंस का एक्सेस नहीं है फॉर रीजनेबल प्राइस। तो ये मेरा 5 साल का प्लान है। और ऑफ कोर्स ये पॉडकास्ट में सेंचुरी हिट करना है, वो मेरा प्लान है प्रोबोनो की तरफ से। सो दैट्स वन। उसके साथ लेट्स सी, मिस्टर सेन, आई वांट टू आस्क यू स्पेसिफिकली, स्टूडेंट्स पे आएंगे अभी, स्टूडेंट्स के प्लान में, बट योर प्लान, सिंस यू आर जस्ट 5 years old, 5.5 years old, so what is your future plan? वेरी सिंपल। मेरा जो फ्यूचर प्लान जो है, मैं नौजवान जो है उनके मेंटरिंग करेंगे। और मैं मेंटर का माने बता दिया, मोटिवेशन, एक्सप्लोरेशन, टीम वर्क, अपॉर्चुनिटी, नजिंग, टीम वर्क, अपॉर्चुनिटी रियलाइजेशन। ये जैसे हम नौजवान के लिए कर सकता हूँ, तो बस दैट्स माय प्लान। ग्रेट। मैं शुरू करना चाहूंगा सबसे पहले, लेट्स सी, साधना से। सर मेरा फ्यूचर प्लान ये है, मैं अगर ऐसा मेरे को मौका मिला तो मैं एक खुद का इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहती हूँ। मेनली ये है, और उस इंस्टीट्यूट को ओपन करने से होगा क्या है, एक तो बच्चों को स्टडी मिलेगी, सेकंड ये है कि जो लोग घर पे रहते हैं या फिर जो स्कूलिंग करते हैं टीचर्स, उनको भी पार्ट टाइम जॉब करने का एक टाइम मिलेगा। मतलब वो उस इंस्टीट्यूट में आकर जो भी उनके पास टाइम है, 1 घंटे 2 घंटे,
तो वो आके वहां पर अपना जो है जॉब कर सकते हैं। तो इस तरीके से, और साथ में उनको भी जैसे बच्चों की फीस है उसके अकॉर्डिंग उन्हें भी उनका हिस्सा मिलेगा, और जो होगा वो मेरे पास, जैसे कि अगर हम 30-70 का रेशो कर लें तो इससे उन लोगों को भी कोई घाटा नहीं होगा और ना ही हमें। और इस तरीके से ये एक बिजनेस का भी पार्ट है, तो बिजनेस भी हो गया इस तरीके से। तो मैंने ऐसा कुछ सोचा है, अगर ऐसा हो तो। बहुत बढ़िया। दिव्या जी, आप बताना चाहेंगे? और बाय द वे, मैंने जब बोला था कि ये ओपन प्लेटफॉर्म होगा, तो अगर किसी को भी कुछ सजेशन देना है तो आप बीच में बोल सकते हो। अभी मैं विलन नहीं हूँ, अभी हीरो बन गया मैं। अभी आप इंटरप्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ दिव्या जी, आप बताना चाहेंगे अपना फ्यूचर प्लान? सर मेरा फ्यूचर प्लान है पार्लर की शॉप खोलना। दिव्या, थोड़ा प्लीज जोर से बात कर लीजिए, माइक पास रखिए। सर मेरा फ्यूचर प्लान पार्लर ओपन करना, पार्लर की शॉप, फिर उसके बाद दिव्या एक बार रिपीट कर सकते हो? आई थिंक बीच में नेटवर्क की दिक्कत आ गई थी। मेरा फ्यूचर प्लान है सर पार्लर की शॉप। I think network problem कुछ ज्यादा ही हो गया, टेक्निकल इश्यूज। So I could hear her. She was basically saying कि उनका future plan है parlor shop खोलना। हाँ आदित्य। हाँ, so I could hear her. मैं उनकी बात सुन पा रहा था। तो दिव्या ने कहा कि उनका फ्यूचर प्लान है पार्लर शॉप खोलना, और उनका जैसे मेहंदी का डिजाइन वगैरह है तो वहां पे अपना सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और एवरीवन, हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे स्टोरीज पोस्ट किए हुए हैं जहाँ पे दिव्या जी का मेहंदी का आर्टवर्क हमने शोकेस किया हुआ है। तो अगर आपको सपोर्ट करना है या फिर आप उनके सर्विसेज को परचेज करना है तो प्लीज आप दिव्या जी से वो अपने उनके सोशल मीडिया हैंडल पे जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो डू चेक आउट आवर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पोस्ट। इसके बाद लेट्स सी, श्वेता आप बताना चाहेंगे? सर जैसे कि मेरा बिजनेस अभी पेंटिंग्स और ड्राइंग्स का है, तो मेरा बिजनेस प्लान है कि मैं अपने पेंटिंग और ड्राइंग के बिजनेस को और अपर लेवल पे लेके जाऊं और अलग अलग डिफरेंट और ज्यादा कलर्स से पेंटिंग्स करूं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और बाय द वे, आई डोंट नो कल के क्लास में जो प्रोबेबली स्टूडेंट्स आए नहीं थे या फिर अगर आपने ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन मिस आउट कर दिया है, तो पेंटिंग स्पेसिफिकली आर्टवर्क, अगर इफ यू नीड एनी हेल्प, कैसे उसको मार्केट करना है और हाउ टू सेल इन अ पर्टिकुलर मार्केट, सो डू कनेक्ट विथ मी इफ यू वांट। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन आई कैन बोस्ट अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपर्टीज वेयर आई हैव एक्चुअली सोल्ड सम प्रोडक्ट्स, तो बिल्कुल आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो इसके बाद सुजाता, आपका फ्यूचर प्लान? सर वो मेरा फ्यूचर प्लान है, जो अभी हमने ये आइडिया सोचा है, वो एक बुटीक खोलने का सोचा है। तो हम सोच रहे हैं कि अपने फ्यूचर में एक बुटीक एक शॉप ऑन करें, मतलब कि बुटीक ओपन करें, ताकि लोग हमारे पास आए, अपने सूट्स वगैरह सिलवाएं। और मतलब सर यही है कि हम एक बुटीक खोलना चाहते हैं फ्यूचर में। ग्रेट। और एवरीवन जो जिनको गारमेंट में इंटरेस्ट है और जो कि परचेस करना चाहते हैं, आई थिंक सुजाता और मोनिका दोनों ही ऑर्डर ले रहे हैं, तो अगर आपको उनसे कनेक्ट करना है तो बिल्कुल। सुजाता, अगर बताना चाहेंगे अपना यूट्यूब चैनल के बारे में, नाम क्या है, टाइटल क्या है? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। वो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है मोनिका फैशन क्रिएशन। राइट। और हाँ जी, बताइए। नहीं सर, बोलिए आप। एवरीवन, अगर आपको कनेक्ट करना है तो ऑल द लिंक्स टू द चैनल्स, टू द सोशल मीडिया हैंडल विल बी पोस्टेड इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको परचेस करना है या फिर आपको सपोर्ट करना है तो बिल्कुल डू विजिट दिस चैनल्स एंड दिस सोशल मीडिया हैंडल्स। और इफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड, आई थिंक एक मोटिवेशन और एक सपोर्ट भी रहेगा इफ यू एक्चुअली डू परचेस, एंड आई एम नॉट फोर्सिंग यू, डू चेक आउट देयर प्रोडक्ट। और आपको अच्छा लगा, और मैंने तो देखा अच्छा लगा मुझे, लेकिन मैं तो सलवार कमीज पहनूंगा नहीं,
सो मैंने ऑर्डर नहीं किया है ऑब्वियसली, लेकिन इफ यू डू लाइक द प्रोडक्ट डू ऑर्डर, डू हेल्प द स्मॉल बिजनेसेस, इनको ग्रो करने में हेल्प करें। और मोनिका, आपका कोई विजन है सुजाता से अलग? आई नो दोनों का 50-50 भाग है, लेकिन विजन आपका क्या है फ्यूचर प्लान में? नो सर, हमारा यही है कि हम लोग अपनी खुद की एक शॉप खोलना चाहते हैं, क्योंकि जब हमने अब आइडिया सोच ही लिया है तो उस आइडिया पे वर्क करेंगे, अपनी खुद की शॉप खोलेंगे। अगर उस शॉप पे मतलब जब हम शॉप खोलेंगे तो हम लोगों को काम भी दे सकते हैं, जैसे जो लेडीज हैं जो घर में सिलाई वगैरह करती हैं वो हमारे शॉप पर आकर काम भी कर सकते हैं। अगर वो हमें सिलाई करके दें और हम उनको उनके जो भी पैसे होंगे हम उनको देंगे, वो हमारे शॉप पे काम भी कर सकते हैं। और सर हमने ना अपनी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, जिससे अगर किसी को ऑर्डर करना हो तो वो हमें ऑर्डर भी कर सकता है। ग्रेट। सो गाइज, मैं तो अभी ऑब्वियसली पब्लिक में नंबर बता नहीं सकता, लेकिन उस लिंक के द्वारा यू कैन चेक आउट देयर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे जैसे इन्होंने बताया कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, एंड यू कैन गेट इन टच विद देम टू मेक योर ऑर्डर, एटलीस्ट फाइंड आउट कर ले कि इनका प्रोडक्ट्स कैसे हैं, ताकि आप इनको सपोर्ट कर पाए। और एंड करने से पहले मिस्टर सेन, अक्षय, हरीश एंड आदित्य, अगर आपके कोई फाइनल कमेंट्स है। फर्स्टली आई वांट टू स्टार्ट ऑफ विद हरीश। आई थिंक बहुत सारी चीजें कवर हो गई। आई वुड आल्सो लाइक टू शेयर कि हमारे उद्यम लर्निंग फाउंडेशन के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कि हम ये सोच रहे हैं कि और कुछ एक स्टेट्स में हम कर भी रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट है और इसके जो डर हैं वो अगर स्कूल लेवल पे ही स्टार्ट कर दिया जाए तो थोड़ा सा ज्यादा आसान रहता है, वो डर शायद कम हो जाए, तो एक्सपोजर अर्ली स्टेज पे हो जाए। और बाकी बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं बच्चों के, और ये 5 बच्चे हैं, अभी और भी हैं, तो रियली एक्साइटेड कि इनमें से कितने बच्चे खुद का और कुछ स्टार्ट करते हैं और इसको मोनेटाइज कैसे करते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, और उद्यम प्रो बनो, हम लोग आपके साथ हैं किसी भी चीज के लिए, मतलब वी आर अवेलेबल देयर, सो प्लीज फील फ्री टू गेट इन टच फॉर एनीथिंग। थैंक यू सो मच। ग्रेट। अक्षय? तो आई थिंक जस्ट ऑन फ्यूचर प्लान्स बिट, राइट, मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड कि हमने एक पायलट एकदम अनचार्टेड टेरिटरी की तरह इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करी साथ में, एंड यू नो वी हैव द सपोर्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स एज ऑफ नाउ। तो पर्सनली स्पीकिंग, लाइक माय फ्यूचर प्लान इज कि जो इम्पैक्टफुल वर्क करना शुरू किया है, राइट, मैंने पर्सनली इस प्रोजेक्ट में, अदर प्रोजेक्ट में भी, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा सके, क्योंकि मेहनत जो हम अपनी प्रिविलेजेस हैं हमारी, अगर उनको हम शेयर करके बाकियों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, आई थिंक दैट इज वन थिंग जिसमें मुझे पर्सनली बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो इस पायलट को जो डिजाइन किया है अभी एंटरप्रेन्योरशिप का हरियाणा में, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को बेटर करना इज अ फ्यूचर प्लान, कि हम इसको कैसे और इन डेप्थ कैसे कर सकते हैं और इसको लार्ज स्केल पे पूरे स्टेट में कैसे लेके जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। आदित्य और मिस्टर सेन, सो फ्यूचर प्लान तो पूछ लिया, बट एनी फाइनल कमेंट्स, क्लोजिंग कमेंट्स? फर्स्टली आदित्य। मेरी तरफ से फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच उद्यम लर्निंग फाउंडेशन फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी, और इस इतने अच्छे प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, बिकॉज आई थिंक ये बहुत जरूरत है देश में। बहुत सपना भी था मेरा, एक्चुअली मैं जेन्युइनली बताऊं तो मेरा सपना था कॉलेज के बाद से कि, क्योंकि हम भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, और उस टाइम पे उतना मतलब मुझे पर्सनली लगता था कि हमारा सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, तो उसके खिलाफ मैंने काफी सिस्टम के खिलाफ बोलते हुए काफी सारे वीडियोस भी अपलोड किए हैं, जो अगर आप यूट्यूब पे बहुत ज्यादा ढूंढोगे तो शायद से मिल जाएंगे, या फिर किसी दिन अगर मेरा मन किया कि थोड़ी बेइज्जती करवानी है तो मैं वीडियोस खुद ही पोस्ट कर दूंगा। तो वहां पर आई थिंक बहुत हमने बोला था कि सिस्टम में ये नहीं है, वो नहीं है, तो हमें ये मौका मिल पाया कि हम भी सिस्टम में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सके। तो अब आई थिंक एक अच्छा मौका है हमारे पास कि जो बोला था वो करने की पहल करने के लिए। दूसरा, मैं थैंक करना चाहूंगा हमारे सारे स्टूडेंट्स को, जिन्होंने बहुत ही, एक होता ना, ओपन आर्म्स से इस प्रोग्राम का स्वागत किया, और इतने अच्छे अच्छे आइडियाज आ रहे हैं, तो हमें भी काफी मोटिवेशन मिलती है जब स्टूडेंट्स इतने अच्छे से काम करते हैं अपने आइडियाज के ऊपर। एंड आई थिंक दीज आर द फ्यूचर आर्किटेक्ट्स ऑफ आवर कंट्री विद अस। हम भी यंग ही है, ऐसा भी नहीं हम बुढ़े हो गए, तो आई थिंक वी ऑल आर द फ्यूचर आर्किटेक्ट्स ऑफ द कंट्री, और कोशिश पूरी यही है कि हम सब अपने बिजनेस आइडियाज के थ्रू एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सके। सो दोज इन द ऑडियंस आल्सो डू वर्क ऑन योर बिजनेस आइडियाज, एंड इफ यू वांट योर बिजनेस आइडियाज टू बी प्रमोटेड, लेट अस नो, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू डू दैट। Mr. Sen,
Now you have no time constraint. all I have to say is God bless you and keep working hard. मेहनत करते रहो, and I'm sure you're going to succeed beyond your imagination. That's all. And if you need any help, I am always there. ग्रेट. और मिस्टर सेन प्रोबनो के खुद मेंटोर है, तो आई थिंक बिल्कुल जो भी उनसे हेल्प लेना चाहेंगे, थिंक उनसे सीखने को बहुत है. 60-65 डेज से हम इनसे रोज ही बात कर रहे हैं, डेली 1 to 1.5 का के लिए, और रोज कुछ नया सीखने को मिलता है. तो आई थिंक उसके आगे मैं बताऊंगा, तो प्लीज डू गेट इन टच विथ हिम अगर आपको कुछ सीखना है और आपके बिजनेस में कुछ हेल्प चाहिए. गेट इन टच विथ प्रोबनो, हो जाएगा. बिल्कुल. और इसके आगे मैं कुछ और बकबक करते रहूंगा. आई थिंक इन सबको इनजस्टिस देना हो गया. सो विद दैट बीइंग सेड, फर्स्टली सारे ऑडियंस मेंबर्स को थैंक यू. ऑफ कोर्स आज आप पूछोगे ऑडियंस क्वेश्चन कुछ ले नहीं पाए, लेकिन आज द नेचर ऑफ डिस्कशन ऐसा था जहाँ पे ये कोई Q&A नहीं चल रहा है. आई थिंक इट वाजंट अबाउट क्वेश्चनिंग व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग और आस्किंग और मोर अबाउट, ये बस जानने थे कि लोग सोचते क्या है, एक बडिंग एंटरप्रेन्योर सोचता क्या है. विद दैट, बट डेफिनेटली थैंक यू फॉर ऑल योर कमेंट्स. आई थिंक बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है, एंड आई एम ग्लैड टू सी कि सारे ITI के स्टूडेंट्स एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए रेडी है. ना ही उनका खुद का आइडिया है या फिर उनका खुद का बिजनेस है, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए रेडी है. और हम होप करेंगे कि सब लोग साथ में काम करके अपना खुद का बिजनेस बनाए. एंड सेकेंडली, मिस्टर सेन, आदित्य, हरीश एंड अक्षय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. एंड ऑफ कोर्स आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस्ट जो है हमारे स्टूडेंट्स, मोनिका, श्वेता, सुजाता और दिव्या, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू. बहुत हिम्मत होती है शेयर करने को पब्लिक में कि ये मेरा आइडिया है, मैं ये करूंगी, और ये पब्लिकली बताना थोड़ी हिम्मत की बात है. तो मैं फर्स्टली आपको अपलोड करूंगा शेयर करने के लिए, और थैंक यू शेयर करने के लिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए. सो इसी के साथ स्टे होम, स्टे सेफ, वॉश योर हैंड्स. बाहर जा सकते हो, ओपन अप हो रहा है, लेकिन गो आउट ओनली इफ इट्स एन इमरजेंसी और जरूरत के लिए. लाइक एंड फॉलो आवर फेसबुक पेज and turn on post notifications to get notified when we do go live, and subscribe to our YouTube channel to catch the live streams about entrepreneurship. And we'll see you tomorrow same time at 6 p.m. with another guest. Take care now. Bye bye. See you.